everyone, this is Hazel Gupta and welcome to my channel. I hope you guys are doing well and it's been pretty long since we all have met. So today's video is Sawal Jawab Part 2. A few days back on my Instagram page, I put up a story asking you guys to drop few questions, and I won't be answering alone those questions because I have someone else with me. So let me just introduce him to you people, and those who are connected with me on my Instagram, or those who follow me over there, they know what I'm talking about. So just let's go. So guys, this is Akshat Lakhe, Chief Manager of Fantix Publication, and today he is with me over here to answer your questions which you guys asked us regarding etc etc regarding our work life, our personal life, our embarrassing moments, and yeah. So Akshat, introduce yourself. Hello everybody, this is Akshat Lakhe. I'm the Chief Manager of Fantix Publication. Also, I'm the founder of Funcar.nofilter. IG यहाँ मिल जाएगा. So if any artist, any creator wants to contact us, make sure that you type in the correct IG and let's just make something great. So, and I'm really excited for this video to answer all of your questions. I've read a few, so let's see where. Also, those who don't know him, he is an amazing writer as well. इसका Instagram link आपको description में मिल जाएगा. वहाँ पे you can go and check out his writings. You can also go and follow him over there. So talking about the questions, Instagram पे कुछ दिनों पहले हम दोनों ने अपने अपने पेजेस पे एक क्वेश्चन वाला जो स्टोरी होता है वो डाला था, जिसमें हमने पूछा था कि इफ़ यू हैव एनीथिंग यू वांट टू आस्क अस रिगार्डिंग आवर वर्क, रिगार्डिंग आवर लाइफ, रिगार्डिंग आवर एम्बैरेसिंग मोमेंट्स, या फिर कुछ भी आपको पूछना है. तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आए थे हम दोनों के ही पेजेस पे. वी शॉर्ट लिस्टेड 10 क्वेश्चंस विच आर रिटन इन दिस डायरी जो सबने देखी है, जो मेरा चैनल मोस्टली देखते हैं. नहीं देखते हो तो प्लीज़ देख लो. ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस इसको पता है, कुछ क्वेश्चंस इसको नहीं पता है. जो मेरे पास आए थे वो इसको नहीं पता है, जो इसके पास आए थे वो इसको पता है. सो स्टार्टिंग विद सवाल जवाब पार्ट 2 विद चीफ मैनेजर. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पर्सनली मेरा क्वेश्चन है, जो मैं अक्षत से पूछना चाहती हूँ कि व्हाट इज फैनेटिक्स एग्जैक्टली. सेकेंड क्वेश्चन इज, इसी के साथ एक और क्वेश्चन है जो एक फॉलोअर ने पूछा था इंस्टाग्राम पे, और वो क्वेश्चन ये था कि मीनिंग ऑफ योर पब्लिकेशन नेम, फैंटिक्स का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली. सो व्हाट एग्जैक्टली इट इज, लाइक ओवरऑल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन. Okay, so this has been a very common question, और क्या बोलूँ, एक hot topic in everybody's family, जो भी related है fanatics से. So fanatics is a very, I should say it's a very wider term. Why? Because there is a lot going on in fanatics. Fanatics के अंदर fanatics publication आ जाता है, spectrum of thoughts आ जाता है, fanatics में star आ जाता है, spectrum of words आ जाते हैं, funcar आ जाता है. So there is a lot going on in fanatics. To be honest, the main thing that we are trying to do is to bring up the artists, to bring up the writers, and to bring good books to the society, to bring some, to take out the talent out of these raw writers and these raw So basically fanatics is not just a publication. No. It's more than that. Yes, it's more than that. Okay. And for the meaning of the name, you guys have heard the word fanatic, right? It's to be crazy for something. It's like to be very enthusiastic about something. So we wanted to do something creative, so we replaced the C with X. That's all we did. Also guys, please, बहुत सारे लोग हैं जो फैंटिक्स का नाम थोड़ा गलत लिखते, थोड़ा ढंग से लिख लिया करो यार. इट इज FANATI जिसमें से जो फर्स्ट वाला एक्स है वो कैपिटल में है. मैं नीचे लिख दूंगी स्क्रीन पे, कहीं ना कहीं इधर उधर कहीं ना कहीं आ जाएगा, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज हो जाते हैं. दे गेट रियली कंफ्यूज विद द नेम. The spelling is same. We just added art twists and turns in that because हमें अपना थोड़ा अपने हिसाब का रखना था, इसलिए हमने वैसा कर दिया. The reason why we kept the first X capital was to bring out the X factor from the raw writers and raw talent. So that's why we kept the first X capital. So
क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं पीपल लाइक एक एक्स कैपिटल क्यों है, दूसरा कैपिटल क्यों नहीं है, एंड Yes. everything. Obviously that's जनरल क्यूरियोसिटी जो सबके And मन that's में normal that's because normal and when that you should have curiosity. when you're creating a brand, so these are the questions that Yeah. you're gonna get every time. Yeah, every So time. yeah. So moving on to next question. The next question is how Fantix happened to us both. Okay, that's a really long story. Yeah. So we met in a book. We were part of that a particular book, and somewhere or the other, she liked my work, and I was there as an editor. I guess I was there. I was doing something. Yeah. So they were also planning to take out some book, sort of. So she recruited me as an editor for their book. So that was Spectrum of Thought. That was our first book. It was an anthology actually. It was an anthology actually, and to be honest, Fanatics publication was not there. After that, I really bonded with the founder Hemant and the other manager Ishika and the other team members Mayuri, Niharika, and Nurleen. So that's how I guess, with a lot of planning, with a lot of hard work, with a lot of sleepless nights, struggles, let's struggles. just say, That's and how. lot of what should I say, घर वालों की 50 चीजें. Yes, and No offense, but it was there. and to be honest, we took a great risk, a very big risk. Some of us took a risk on their career, some of us took a risk on their families and everything. So Yeah. so that's how Fanatics happened to To- me. Actually, yeah, actually to to you, me, actually. that's how it happened, and yeah, I guess that's the story. And how Fanatics happened to me, for that you have to watch this whole video, because that I will be telling you एकदम लास्ट में, because it's a pretty long and थोड़ी सी कहते हैं ना ऐसे अचानक अचानक हुई वाली story. So for that just wait for the last part. मैं last segment में पूरा बता दूंगी how it I happened. think जो सारी अच्छी चीजें होती है वो अचानक अचानक ही हो जाती है. अचानक अचानक चुटकी बजाते हुए चुटकी बजाते ही हो जाती है. Exactly, yep. तो वो कैसे हुआ, क्या हुआ, एकदम से वो एकदम लास्ट में आपको पता चल जाएगा. For listening to that, you have to stay tuned. Okay. So the third question was asked on my page. The question was a funny client story. क्या कहना चाहेंगे अक्षत आप इसमें? Funny client story. All right. All of our clients are very innocent. So वो innocence झलकती है. So I won't call that thing funny. I'll call them innocent. And because publishing is a very complicated process, people think. No, I'm not saying in a way where बहुत paperwork है or something like that, but it's new. Self-publishing, as of now, it's very new. Yeah. So people don't understand the difference between the traditional publication and the self-publishing. So I don't consider all of those things as funny. You cannot basically because Yes. the thing is on daily basis we get a lot of inquiries. तुम्हारे पास भी आती है, मेरे पास भी आती है, हमारी जो आउटरीच मैनेजर है उसके पास आती है, बाकी जो टीम मेंबर्स है, चाहे फिर वो स्पेक्ट्रम के टीम मेंबर्स क्यों ना हो, चाहे फिर वो फैंटिक्स विस्तार के टीम मेंबर्स क्यों ना हो, क्वेरीज रोज आती है. एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी इंक्वायरी के बारे में मतलब सबको पता ही हो कि हम लोग क्या पूछने जा रहे हैं, ये सामने वाला क्या बताएगा. एज ही सेड कि एक थोड़ा सा नया प्रोसेस है. ट्रेडिशनल पब्लिशिंग इज वे टू डिफरेंट देन सेल्फ पब्लिशिंग. ऑल्सो अगर आप लोग को चाहिए इस पे वीडियो बने तो वो भी बता देना कॉमेंट सेक्शन में, विल मेक अ वीडियो. ओके, जोक्स अपार्ट एंड वाला तो बात ही आ जाती है कि वो लोग इंक्वायर करते हैं, दे आस्क अस क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत सिली तो नहीं बट छोटे छोटे होते हैं. अगर उनको हम फनी कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज इफ दे वुड बी आस्किंग एनी क्वेश्चंस तो वो उनके पार्ट पे भी गलत होगा, वो हमारे पार्ट पे भी गलत होगा. इफ यू हैव अ डाउट यू शुड क्लियर इट एज सून एज पॉसिबल. जहाँ मौका मिल रहा है क्लियर कर लो, नहीं क्लियर करोगे तो बाद में सिलीनेस झलकेगी, फिर वो आपकी किताब को इफेक्ट वो करेगा, आपकी बुक basically. पे अफेक्ट करेगी इन द एंड वाली चीज़ है. तो मैं फनी नहीं कहूँगी बट हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि हमारे क्लाइंट्स के साथ हमारे एक फनी कॉन्वर्जेशन ज़रूर होते हैं. Yeah, we converse with them as if they're part of our family. या Because वो एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है हर क्लाइंट के साथ. एंड आई डोंट लाइक टू कॉल देम क्लाइंट्स, आई लाइक टू कॉल देम ऑथर्स. Yeah, बिकॉज exactly. सारे ऑथर्स के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बन जाता है. एंड यार मतलब इट्स टू बी ऑनेस्ट आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ, एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम डूइंग द बेस्ट वर्क ऑफ माई whatever I wanted to do, I'm doing it. So Yeah. I'm quite happy with it.
या इट्स नाइस, मतलब वो एक बॉन्ड बन जाता है. एंड टॉकिंग अबाउट द फनी क्लाइंट स्टोरी ऑब्वियसली बिल्कुल भी फनी नहीं है हमारे पास, बिकॉज इफ हम बताएंगे तो वो ऐसा हो जाए कि हमारे ऑथर्स को हम मॉक कर रहे हैं, जबकि हम नहीं करना चाहते, क्योंकि हमें वो कहीं से भी फनी नहीं लगता है. हमें वो चीज़ लगती है यार कोई बात नहीं ना, पूछा उनकी जगह हम, क्योंकि एक टाइम पे हमें भी वो सेम डाउट्स हुआ करते थे व्हेन वी स्टार्टेड. फनी क्लाइंट स्टोरी तो नहीं है, बट बैक देन इन लास्ट ईयर ऑन आर इंस्टाग्राम पेज, पब्लिकेशन के इंस्टाग्राम पेज पे हमने एक वीडियो किया था ऑथर्स यूनाइट करके. तो उसमें उसमें व्हाट हैपेंड, जितने ऑथर्स उस टाइम पे अवेलेबल थे और वो लोग उस टाइम पे फ्री थे बिकॉज फेस्टिव सीजन चल रहा था, तो उनसे हमने कुछ कुछ वीडियोस मंगवाई थी. वी कंपाइल दैट वीडियो, सारी वीडियोस को कंपाइल करके हमने ऑथर्स यूनाइट करके बनाया था. उसके जो बिहाइंड द सीन्स थे हमने वो भी मंगवाए थे, एंड वो बिहाइंड द सीन्स काफ़ी फनी थे. वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट ओवर देयर. दैट वाज रियली ग्रेट. या दैट वाज रियली ग्रेट. तो क्लाइंट स्टोरी फाइन नहीं थी, बट वो हाँ वो क्लाइंट वीडियो वीडियो बहुत बेहतरीन क्लाइंट था. वीडियो बहुत बेहतरीन था, एंड हमारे ऑथर्स काफी हंसे थे उसको देख Yes, के. yes. Moving on to our next question. The question is, how did this idea of publishing came into our mind? So let's go back to Spectrum of Thoughts. 2000, 17, and it was launched in 2018. yes, 2017 December. So we were searching for publishers, and what we saw कि It was in 2017. 17. Yeah, sorry. It was in 2017. So we were looking for publisher, and we found one. But दिक्कत ये थी कि जिस जो क्वालिटी हमें चाहिए थी या जो सर्विसेज हमें चाहिए थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे थे. टू बी ऑनेस्ट, अभी एक देखोगे तो most of the authors are students. Most of the authors doesn't have that money to publish their work. So we thought क्या हम उस टाइम पे क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वही क्वालिटी सर्विस या उससे बेटर क्वालिटी सर्विस हम कम प्राइस में या एक पॉकेट फ्रेंडली पैकेज बना के हम ऑथर्स को दे सके. सो पूरी टीम बैठ के रिसर्च करने, एंड करीब 1.5 ईयर हमने रिसर्च किया कि हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसको प्रोसेस कर सकते हैं, टीम किस तरीके से होगी, कौन क्या काम करेगा, एंड एवरीथिंग. And then one fine day we registered this publishing house. So yeah, that's how, and that's how that idea came. And to be honest, that idea came just for the authors कि उनको एक पॉकेट फ्रेंडली पैकेज में काफ़ी अच्छी सर्विसेज और काफ़ी क्वालिटी सर्विसेज मिल सके, एंड वो कोई भी स्पेंड करने के पहले ये ना सोचे कि यार ये बहुत बड़ा अमाउंट है, इसमें इससे तो मैं कुछ और कर सकता था, राइट. सो दैट वाज आई गेस द मेन रीजन व्हाई वी ऑप्टेड टू go for the publishing, or why that idea came into And our I mind. guess Fantex is one of the best things which has happened to me in 2017, honestly. I agree. So the next question is, मैं प्रोफेशनली कैसे ज्वाइन हो पाऊंगा फैनेटिक्स से? आप प्रोफेशनली एज एन ऑथर ज्वाइन कर सकते हैं हमें. आप प्रोफेशनली एज राइटर ज्वाइन कर सकते हैं हमें. बट प्रोफेशनली अगर आप एज एन एडिटर, एज अ कवर डिजाइनर, In terms of job इन टर्म्स ऑफ perspective, जॉब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी ज्वाइन नहीं कर सकते. मे बी इन फ्यूचर वैकेंसीज निकलेगी, बिकॉज वी आर प्लानिंग टू एक्सपांड. yeah, Right Like- now we are not expanding, but we are definitely planning to yeah, expand. maybe this year or maybe in next year. and maybe year end तक या mid year तक you'll get a news. Yeah, And if you really want to join us, do check our page out, do check our website out, क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी पहले वहीं वहीं आएगी. राइट. इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएगा सब कुछ. सो मैं वेबसाइट लिंक भी डाल दूंगी, सो डू चेक अस आउट. सो अक्षत, अभी तक जो भी प्रोफेशनल वाले क्वेश्चंस थे, हमारे वर्क लेवल वाले वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस थे, वो अब फिनिश हो चुके हैं. मैंने इतने ही रखे थे जो तुम्हारे पास और मेरे पास आए थे. अब जो क्वेश्चंस है वो थोड़े पर्सनल वाले हैं. पर्सनल ऐसे नहीं कि बहुत डिटेल्ड पर्सनल क्वेश्चंस नहीं है, आए थे, बट we can't answer that. We can't You answer guys that. know that. अभी आंसर करना जरूरी नहीं लगा. मे बी सम अदर डे, Maybe some maybe other time. some other time in some other video. So अब personal वाले questions हैं. Sure. So let's get into it. The first question is not the first one, but उसमें first. Tell one embarrassing secret of each other. She fumbles a lot. I'm still doing in this video. उसको देख लो, आप उसको किसी के साथ भी बैठा दो, बहुत फंबल करती है वो. कुछ ना कुछ बोल देती है, लाइक इफ शी इज सेइंग ना ना ना.
आई डू दिस. She doesn't understand और what to मैंने say बहुत also. सारी वीडियोस में किया भी है जो मैं कभी कभी कट कर देती हूँ बिकॉज मुझे करना पड़ता है ना, इसलिए तो मैं वो कट कर देती हूँ. इसका एम्बैरेसिंग सीक्रेट ये है कि once he starts laughing, he can not stop immediately. No doubt people adore his smile a lot, but once he starts laughing he cannot. कुछ भी वीडियो देख रहा होगा या कुछ होगा तो एकदम से उसको फनी लगेगी तो ही जस्ट स्टार्ट्स लाफिंग एंड दैट लाफ कंटिन्यूज टिल व्हाट 15-20 मिनट्स, जबकि उस वीडियो में उतना कुछ फनी होता नहीं है बट वो उसको फनी लगेगा. तो थोड़ी बहुत देर के लिए हंस लिया ठीक है, बट उसको वो चीज़ फनी लगेगी तो वो हंसता रहेगा हंसता रहेगा हंसता रहेगा, वो चुप नहीं होगा फिर. मतलब वो बहुत loud हंसी. वो या it gets a very loudest वाली हंसी every time. That's the secret he has. The second one is an embarrassing moment. An embarrassing moment. दोनों का. My embarrassing moment was explaining what I'm doing in front of my family member and failing to do that. I guess we all were there. We all were on a same boat back Yeah. then. हम लोग एक ही नाव पे तैर रहे थे उस टाइम पे. Because like my whole family was there and they asked what you're doing and I was trying to explain. I tried really hard to explain what I'm doing and they were like, किताबें छापते हो, प्रिंटिंग का काम है. Dude, this printing का काम है ना, हमारी टीम में जितने भी लोग हैं सबने सुना अच्छा प्रिंटिंग का काम है, प्रिंटिंग प्रेस खोला है, क्या क्या छापते हो. बिकॉज दे आर क्लूलेस अबाउट द पब्लिशिंग, नॉट क्लूलेस बट नहीं समझ आता है प्रिंटिंग और पब्लिशिंग में हम डिफरेंस. ऐसा न्यूज़पेपर लेकर हो जैसे सुबह सुबह सबके घर में ऐसा फेंकते नहीं है. वी डोंट डू दैट. So that नो was really ऑफेंस टू embarrassing. दोस बट वी डोंट, वी लव आवर फैमिलीज बट अब वो नहीं करते. Yeah, so eventually everybody understood. So या सो अभी दे आर वेरी सपोर्टिव. वो लोग उस टाइम पे भी सपोर्टिव थे बट अभी कुछ ज़्यादा है बिकॉज अब उन्हें समझ में आने लगी ये चीज़ें. ओके तो दे आर लाइक ठीक है तुम लोग सही कर रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो. I guess उसी कारण शायद we were able to grow this much. Yeah, an embarrassing moment of my embarrassing moment. Because live sessions. I was very unconscious, not unconscious, I was very conscious. Yeah, I was very, see the fumbling thing, this happens. Fumbling, I just forget मुझे क्या बोलना था और मैं क्या बोल देती हूँ. So I was not so much confident regarding my live sessions. So जब मैंने first live session दिया, that was so messed up. ट्रस्ट मी दैट मुझे फ़ोन नहीं रखना आ रहा था कि मैं कहाँ पे फ़ोन सेट करूँ. मेरे पास उस टाइम ट्राइपॉड वगैरह कुछ था नहीं एंड वो काफ़ी अचानक वाला लाइव सेशन था. मैं फ़ोन ऐसे एक हाथ से ऐसे पकड़ रही हूँ, मैंने ईयरफोन्स लगा रखे, मैं ईयरफोन संभाल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं सामने वाले से क्या बात कर रही हूँ. बट उस जिसके साथ मेरा लाइव सेशन था दैट गर्ल वॉज वेरी सपोर्टिव उस टाइम पे एंड शी जस्ट कोऑर्डिनेटेड विद मी अकॉर्डिंगली तुरंत ही लाइव पे. तो थैंक्स टू हर. बट या मेरा एम्बेरसिंग मोमेंट जो है वो लाइव सेशन था. एंड ट्रस्ट मी जो मेरी टीम मेंबर्स है, अक्षत है, यशिका है, हेमंत है, नूरलीन, मेरी निहारिका, इन सब ने उस टाइम पे मुझे इतना सपोर्ट किया. दे न्यू कि मुझे बहुत एम्बेरसमेंट हो रहा है क्योंकि उनको पता था वंस द लाइव सेशन खत्म होगा, जैसे ही लाइव खत्म होगा मैं उन लोग के पास जाऊंगी अपने टैंट्रम्स फेंकने के, लिसन ये हो गया, मैं आगे से अब नहीं करूँगी, ये नहीं करूँगी, ऐसा वैसा ये सब. बट this happened, so that was so embarrassed. That was literally a huge embarrassment for me. But हाँ अभी वो चीज़ जा चुकी है, अभी मुझे नहीं होती है दिक्कत लाइफ. अब मैं ऐसे मुँह उठा के आ जाती हूँ कभी भी लाइफ पे, आधी रात को भी आ जाती हूँ कभी. Okay, so the next question is our best memory. Our best memory would be the Indore tour. Hands down. Shika, Noor. Lean, you Please don't guys watch this missed video. up. You guys literally missed this one. You just don't watch this video. So we had a bomb in we had a ball of a time in Indore and damn that was great. And Ashu, if you're watching, shout out to Ashu and Book Squirrel. Yeah. You guys just उसे घर पे रुकना. And there were so many things and there are so many memories connected to Indore. And इंदौर में हम कुछ लोगों से फर्स्ट टाइम मिले थे बट वो लगा नहीं कि वी आर मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम. It was like a great bonding session for everybody. पूरी टीम के लिए. And this just happened before the COVID situation just popped up in India. January 2020. We met on 3rd January 2020 and we were together till 8th of January 2020.
COVID. That was great. That was great. So we That started was the year with a bomb, and yeah. then the bomb We exploded. were about to end the year with a bomb, but you know, the We can't, COVID. but that's all right. That's different. Some thing. other day. Yeah, some other day. So So yeah, that was one of the best memory. Do we have any other question? नॉट एग्जैक्टली बट हाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है जो रिपीटेडली आया था तुम्हारे पेज पे भी मेरे पेज पे भी और वो क्वेश्चन था व्हेन आर वी मीटिंग टू दोज पीपल लाइक जिनके भी क्वेश्चन थे व्हेन आर यू मीटिंग मी व्हेन आर यू गाइज मीटिंग विद अस ऐसे वाले क्वेश्चन थे कि आप हमसे कब मिल रहे हो तुम्हारे फैंस ने काफ़ी क्वेश्चन पूछे कि अक्षत सर आप हमसे कब मिलोगे तो ये वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए थे I don't have any fans. सो या ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी आए थे तो गाइज हम लोग भी चाह रहे हैं सबसे मिलना जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो भी हमारे सोशल मीडिया वाले फ्रेंड्स हैं हमारे इंटरनेट फ्रेंड्स जो है जिनसे हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना है जो हमारे ऑथर्स हैं जो हमारे को ऑथर्स हैं जो हमारे कंपाइलर्स हैं या कम्युनिटीज़ हैं हमें भी मिलना है उनसे और वी आर जस्ट ट्राइंग कि जितना जल्दी हो सके हम मिल सकें तो जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा उन सबका आंसर ये है कि वी आर जस्ट ट्राइंग and we'll meet you guys as soon as possible. Yes. So guys, that was it for this video. सवाल जवाब पार्ट 2 यहीं ख़त्म होता है. We'll come up with सवाल जवाब पार्ट 3 जब आप लोग को ऐसा कुछ हो क्वेश्चंस वगैरह तो आप कमेंट कर सकते हो. एंड अक्षत थैंक यू सो मच फॉर coming over here and joining me in this video, and it was really fun doing this video with you, and I guess this was the first time we are doing the video together. Yes. Yeah, Like we have come live together. We have done collaborations together, but the video thing, this was the first time. Guys, I'm so sorry. I'm very shy in front of the camera, and like it takes a lot for me to like record a video. And so live session के लिए I'm chill, but Yeah. to record a video I'm a bit shy. It's fine. सब first time सबके साथ होता है. And this was the first video, so that's right. But thank you so much, and it was really fun. it was having really fun. you Thank here. you for being an amazing host. And I guess Yeah, and guys, you can go and follow him on his Instagram. I drop the link in description या फिर screen पे कहीं पे भी IG handle pop up हो जाएगा. So आप जाइए, follow कीजिए और उनकी writing check कीजिए. He writes amazing. And yeah, that's it. अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? रुको, मैंने कहा था ना कि हाउ फैनेटिक्स हैपन टू मी वाला पार्ट अभी बाकी है तो कहानी सुन के जाओ. अभी जाओ मत इतनी जल्दी, कहानी काफ़ी अच्छी है. कहानी नहीं है, इट एक्चुअली हैपेंड. तो फैनेटिक्स हुआ ऐसे कि जैसे आपने देखा वीडियो में कि हम लोग एक बुक के थ्रू मिले थे हम सब, एंड उसके बाद सारी चीज़ें हुई. फैनेटिक्स हुआ, स्पेक्ट्रम ऑफ थॉट्स हुआ, ये सब हुआ. तो 2017 में आई जॉइन रैंडम थॉट्स इशिका के थ्रू, क्योंकि इशिका वहाँ पे परमानेंट राइटर के बेस पे थी उस पेज पे. तो उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया रैंडम थॉट्स से, हेमंत बंसल से. मैंने रैंडम थॉट्स ज्वाइन किया. फिर उसके बाद रैंडम थॉट्स का नाम हमने चेंज नहीं किया था, बट हमने फैनेटिक्स भी साथ बाय साथ स्टार्ट कर रखा था साथ ही में. फैनेटिक्स उस टाइम पे सिर्फ कम्युनिटी नहीं था, राइटिंग कम्युनिटी, इट वॉज मोर ऑफ और भी चीज़ें थी साथ में. बट हमने फिर ज़्यादा फोकस रैंडम थॉट्स के साइड में करके फैनेटिक्स में लेके आया. फैनेटिक्स का राइटिंग पेज चालू हो गया. उसके बाद फिर व्हाट हैपेंड वन डे, रात के 12 या आई गेस 1 या 2 बजे करीब की बात है रात को, हेमंत का मेरे पास कॉल आता है. हम लोग उस टाइम पे था कि हम लोग ना रात को बहुत जगते थे, नींद नहीं आती थी या कुछ भी करते रहते थे. एज यूजुअल सबकी प्रॉब्लम रात को नींद नहीं आती वाली. तो उस टाइम पे हेमंत का मेरे पास रात को कॉल आता है 2 बजे करीब, 1-1:30 बजे करीब ऐसे कुछ, कि क्या कर रही है. मैंने कहा कुछ नहीं यार, सोने की कोशिश कर रही हूँ, नींद नहीं आ रही. बात हुई, उसने बोला कि एंथोलॉजी स्टार्ट करना है एक. मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. रातों रात हमने बैठ के प्लान शुरू कर दिया कि ये मेंबर ये करेगा, ये मेंबर ये करेगा, इतने मेंबर्स हैं, कैसे कैसे प्रोसीड करना है. ठीक है. एंड मैंने कहा लिसन, मेरे पास एक एडिटर भी है तो मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगी, कल हम लोग बात कर लेंगे. उसने कहा ठीक है भाई, ये भी कर लेते हैं. अक्षत को मैंने इंट्रोड्यूस कराया, बाकी सब चीज़ें हुई. वी ऑल केम अप टुगेदर एंड वी स्टार्टेड स्पेक्ट्रम ऑफ थॉट्स. ऐसे स्पेक्ट्रम ऑफ थॉट्स की जर्नी शुरू हुई. स्पेक्ट्रम ऑफ थॉट्स जब शुरू हुआ तो बीच बीच में हम बात करते थे. जैसे अक्षत ने बताया कि फैनेटिक्स का आइडिया कैसे आया, वो वहाँ से ही आया था. तो बेसिकली देखी जाए तो ये चीज़ एक पॉइंट पे देखा जाए तो चुटकियों में रातों रात भी हुई है, और देखा जाए तो 1-1.5 साल की इसमें काफ़ी मेहनत भी लगी. पर्सनली अगर मेरी बात करें तो फैनेटिक्स मेरे लिए बहुत चुटकियों में हुआ था. लाइक फटाफट, इट वॉज वेरी इंस्टेंट, बिकॉज मैं ज्वाइन हुई वहाँ पे इशिका के थ्रू. उसके बाद फिर हमने स्पेक्ट्रम ऑफ थॉट स्टार्ट किया. उसके बाद फिर
बाकी की प्लानिंग करके, बाकी का डिस्कशन करके हमने फैंटेक्स पब्लिकेशन स्टार्ट किया. सो इट वॉज एकदम से स्टार्ट हो गया था, बट पब्लिकेशन वाली चीज़ एकदम से स्टार्ट नहीं हुई थी. तो वो होता है ना कि कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें फटाफट फटाफट स्टार्ट हो जाती है. एंड ट्रस्ट मी, वर्किंग इन अ पब्लिकेशन हाउस या एक पब्लिकेशन हाउस की कोर टीम मेंबर होना वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ माई प्लान. इवन आज भी जब मैं उस साइड देखती हूँ तो इट गेट्स रियली सरप्राइजिंग एंड इट्स इमोशनल फॉर मी. मैं कभी भी इट वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ माई प्लान. So this is how Fantix started and this is how Fantix happened to me. So this was it. This was the whole thing. Thank you so much for for being here till now, for watching it here till now. So yeah, this is how Fantix happened to me, and thank you so much. Thank you everyone who was there with us जब हमने स्टार्ट किया था, जो अभी तक हमारे साथ हैं और जो हमें और जुड़ते जा रहे हैं, हमारे साथ ग्रो कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं एंड जो हमें ट्रस्ट करते हैं. थैंक यू. फैमिलीज तो हर किसी की सपोर्ट कर देती है यार, जो फैमिली नहीं है वो सपोर्ट कर दे, वो बड़ी बात है. तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दैट. सो या, दिस इज हाउ इट हैपेंड. ऑल्सो थैंक यू सो मच अभी तक रुकने के लिए, अभी तक देखने के लिए. एंड या, आई होप यू enjoyed this video. I hope you liked this video. If you do, don't forget to hit the like, share, comment and subscribe button. Make sure you subscribe to the channel. Make sure you watch the video puri. Make sure you like this video. And yeah, that's it. Also, you can follow me on my Instagram and you can read my writings over there as well. बाकी जितने भी लिंक्स है, अक्षत के पेज का लिंक, फैंटिक्स के पेज का लिंक, स्पेक्ट्रम ऑफ थॉट्स, फैंटिक्स विस्तार, हर किसी का फनकार, हर किसी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन गो एंड चेक आउट देयर पेजेस. यू कैन गो एंड follow them over there. So thank you. I'll meet you soon. Bye bye and take care. Bye.